Hello everyone. Rise of Mauryan Empire under Ashoka the Great. It is our 7th chapter of history, class 6, and today we are having the second session of our topic. And before we start our second session, I want to tell you a short summary of the previous session, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर एक्सटेंड हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने न्यू एम्पायर इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने उसे एक्सटेंड कैसे किया। देन वी स्टडीड अबाउट द चाणक्य। हम चाणक्य के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसके बारे में चाणक्य हु वाज द एडवाइज़र, who was a guide, who was a friend and who was a philosopher of Chandragupt Maurya, and his real name was विष्णुगुप्ता। मैंने आपको बताया था उसका रियल नेम क्या था, विष्णुगुप्ता। और उसके साथ उसके बारे में हमने पढ़ा था कि he was the advisor of Chandragupta, he was his minister also. So before I continue my explanation for Chanakya, I want to show you a small video again in respect of Chandragupta Maurya as well as Chanakya. So just have a look, enjoy, and then we'll continue. Sometime in the 4th century BCE, in the royal court of Dhananand, Vishnugupt advised the king to form a nationwide alliance to tackle the incoming foreign aggression. But in his pride and arrogance, he not only ridiculed the scholar's concern, but even discredited him. Enraged, Vishnugupt untied his top knot and vowed that he would not tie it back until the king and his supporters were uprooted like trees in a storm. Dhananand then was at the peak of his power. His might stretched from Punjab to Bengal. His army was so daunting that even Alexander's troops chose not to attack them head-on. Yet, Vishnugupt would do as he challenged and help build an empire that would eventually become the largest ever seen on Indian soil. The accounts relating to the origins of Chandragupt and Vishnugupt are found mostly in the legends written around them centuries after their time. Chandragupt probably did not have royal ancestry. As a legend goes, Vishnugupt once saw him young playing with his friends. He was being their king and they were his subjects. To test this young kid, Vishnugupt went and asked this king for alms. Chandragupt told to take any of the cows grazing nearby and that no one would challenge his authority. Vishnugupt was impressed. He then took this young lad to Takshashila and started teaching him everything he would need to become an ideal ruler. Meanwhile, Alexander's conquest had reached Indus. But then his homesick and exhausted troops mutinied against further advance and Alexander had to return. Soon afterwards, he died, leaving behind a void of leadership in his conquered territories. Vishnugupt and Chandragupt wasted no time and immediately started to establish their order in the region with a vision of one nation. They allied with local rulers and chieftains, hired mercenary bands, raised an army of their own, and began to make small victories. Vishnugupt was now ready for which he had been waiting for so long. Some legends say that the duo first tried to overthrow Dhananand by attacking his capital straight away. This attempt was unsuccessful and they had to retreat. While hiding in disguise, once they overheard a mother scolding her child who got his lips burnt trying to drink a hot soup from the middle of the bowl.
Don't be naive like Chandragupt, she said. Start to drink from the colder contents at the edges and then move towards the center. They understood what she meant. Realizing their mistake, they began their campaign from the border territories, making small victories as they closed in towards the throne. Their army and alliances grew in size and strength. Eventually, they reached the Magadh capital, and a bloody battle ensued. Dhananand's army was formidable, but Chandragupt and Vishnugupt won. Dhananand was exiled, and Chandragupt Maurya was coronated as the emperor of Magadh. Vishnugupt's mission was accomplished. He became state's chief advisor, and people called him Chanakya. But their story was far from over. A mighty enemy with the legacy of Alexander loomed over the western frontier. The nascent Mauryan rule had a vast territory to defend and administer. In the next video, we will see how these problems were tackled and a legacy. So I hope you have enjoyed this video and आपने इस वीडियो में देखा what we are going to study today about Chandragupta कि Chandragupta was a common boy, है ना, and Chanakya was the advisor, earlier advisor to the Nandas, but he was the minister there. बट इन फैक्ट अ स्टोरी, उसके बारे में एक स्टोरी हम अपनी बुक में भी यही पढ़ने जा रहे हैं जो अभी आपने वीडियो में देखा कि दैट इवन चाणक्य वॉज वंस इंसल्टेड. चाणक्य को एक बार नंदा रूलर्स ने इंसल्ट किया. सो ही जॉइंड द हैंड्स विद चंद्रगुप्ता एंड हेल्प्ड इन ओवरथ्रोइंग धनानंदा. और उसके बाद चाणक्य ने ये डिसाइड किया कि वो नंदा डायनेस्टी को कहीं ना कहीं बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेगा, अपरूट करने के लिए सोचा. एंड डेफिनेटली ही गॉट सक्सेस इन दैट, एंड ही गॉट सक्सेस इन ओवरथ्रोइंग धनानंदा and establishing the Mauryan Empire. And this thing, after that he wrote his book. Chanakya had written a book which was known as Arthashastra, and in it he discussed the principles of politics and the art of government. जिसमें चाणक्य ने पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स लिखे और द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स हाउ, what type of government should be there, what type of a government is a successful government for good administration, what type of steps a government should take. So these things are written in his book that is known as Arthashastra. If you go to library, try to get it and read it. So let us continue with the book. Now you can see the map here in this, the vast empire of Ashoka or Mauryans. You can see, means only if you go in the north, if you see the line which you can see, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, from here these all regions were under the control of Ashoka or Chandragupta, means Gupta, this Maurya dynasty, है ना. तो ये आप देख सकते हैं, ये जितना भी एरिया, only this southern peninsula were left for these Cheras, Cholas and Pandyas, and this whole area was under the control of मौर्य डायनेस्टी. इसमें आप देख सकते हैं ये सारा, मीन्स यहाँ कलिंगा से लेकर और यहाँ तक्षशिला तक. ये देखिए तक्षशिला है, यहाँ पे गंधार है, पेशावर है. नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. So this whole part of was of Gupta dynasty or this. Now we are going to continue with the book.
यहाँ हम देख रहे हैं मौर्य डायनेस्टी, और यहाँ हम ये सब मौर्य डायनेस्टी का एरिया हम देख सकते हैं, और ये है चेरा, चोला एंड पांड्यास का. सो दीज ऑल आर ऑफ मौर्यस. नाउ विल कंटिन्यू. जो मैंने अभी आपको स्टोरी आपने देखी कि ही वॉज इंसल्टेड बाय नंदास रूलर्स, और नंदा रूलर के इंसल्ट करने के बाद चाणक्य ने ये सोच लिया, ये डिसाइड कर लिया कि वो उनको बिल्कुल अप्रूट कर देगा. एंड ही गॉट सक्सेस इन दिस विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. एंड दिस थिंग ही रोट इन हिज अर्थशास्त्र ऑल्सो, एंड दिस वे ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्य डायनेस्टी. आज हम आगे पढ़ेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी. वहाँ की सोसाइटी एंड इकोनॉमी कैसी थी. Let us continue. Society and economy. For the first time in South Asia, political unity. ये अब साउथ एशिया, क्योंकि हमारा इंडिया साउथ एशियन पार्ट में आता है, एशिया के साउथ एशियन पार्ट में लोकेटेड है. सो इन दिस विल स्टडी अबाउट इंडिया. ठीक है. सो ये पहला फर्स्ट टाइम था साउथ एशिया में जब पॉलिटिकल यूनिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी अलाउ हो चुकी थी फॉर कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम. ये सोचा गया कि अब एक कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम इस पूरे एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. द प्रीवियस सिचुएशन, जिससे पहले की जो सिचुएशन थी इन्वॉल्विंग 100 ऑफ किंगडम्स हुआ करते थे. Many small armies, powerful regions, chieftains gave way to disciplined central authority. सब ने मीन्स इस पॉलिसी को, जो कि एक मिलिट्री सिक्योरिटी का सब क्वेश्चन था, पॉलिटिकल यूनिटी का था, एंड द अदर हंड्रेड्स ऑफ किंगडम्स दे allowed these Mauryans that they could start this policy of political unity as well as military security as a overall policy. मीन्स जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उन्होंने सब क्या हो गए, जैसे आज हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट दे आर द पार्ट ऑफ वन कंट्री. तो सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर, मीन्स मॉडर्न एम्परर्स. दे ट्राई टू consolidate all the territories or small kingdoms into one big area. एंड स्मॉल आर्मीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया. स्मॉल आर्मीज़ की भी जगह बिग आर्मी ने ले ली, मीन्स फॉर होल ऑफ इंडिया. एंड फार्मर्स वर फ्रीड ऑफ टैक्स. जो फार्मर्स पर अननेसेसरी मगध एम्पायर के टाइम पर मीन्स मगधन एम्परर्स ने जो टैक्सेस इम्पोज किए थे, अब उनको उन टैक्सेस से, फार्मर्स को उन टैक्सेस से फ्री कर दिया गया. एंड लेट अस कंटिन्यू. क्रॉप कलेक्शन बर्डन्स फ्रॉम रीजनल किंग्स. इसके साथ साथ जो क्रॉप कलेक्शन था, अब वो रीजनल किंग्स के पास था, वो भी हटा लिया गया. अ फेयर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. एक टैक्सेशन का फेयर सिस्टम लागू कर दिया गया. एंड दिस वाज एडवाइज्ड बाय द अर्थशास्त्र. ये जो कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के थ्रू एडवाइजेबल था, उसको माना गया और उसी को फॉलो किया गया. ठीक है. तो अर्थशास्त्र वॉज फॉलो. चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश ए सिंगल करेंसी. जैसे आज हमारी होल कंट्री में, पूरी कंट्री में एक ही करेंसी चलती है, ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इंट्रोड्यूस किया, एक सिंगल करेंसी इंट्रोड्यूस करी पूरे इंडिया में. एंड अ नेटवर्क ऑफ रीजनल गवर्नर्स. एक रीजनल गवर्नर्स का और एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक नेटवर्क बनाया. एंड अ सिविल सर्विस प्रोवाइडेड जस्टिस एंड सिक्योरिटी. ये और सिविल सर्विस भी उन्होंने प्रोवाइड कराई, जिससे वो मर्चेंट्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स को जस्टिस एंड सिक्योरिटी मीन्स की फील दे सके. मीन्स उनको किसी तरह से इनसिक्योर या अनजस्टिफाइड ना लगे, मीन्स ताकि उनको जस्टिस और सिक्योरिटी मिल सके. द मॉडर्न आर्मी वाइप्ड आउट मैनी गैंग्स ऑफ बैंडर्स. मॉडर्न एम्पायर ने बहुत सारे ऐसे मीन्स
रिमूव किए. वाइप आउट मीन्स रिमूव्ड मैनी गैंग्स ऑफ बैंडर्स. बैंडर्स मीन्स रॉबर्स. रॉबर्स के जो डाकू थे या जो आइसोलेटेड एरियाज़ में लोग रहते थे उनको भी को रिमूव किया. रीजनल प्राइवेट आर्मीज़ को ख़त्म किया. एंड पावरफुल चिफेटियंस को जो किसी छोटे छोटे ग्रुप्स के चीफ होते थे या लीडर्स होते थे. और वो थे, ये लोग वो होते थे जो दोज हु सॉट टू इम्पोज देयर ओन सुप्रीमेसी इन स्मॉल एरियाज, जो अपनी सुप्रीमेसी अपना सुप्रीमेसी को स्मॉल एरियाज़ पे इम्पोज करना चाहते थे और उनको स्मॉल एरियाज़ को किसी न किसी तरह से टॉर्चर करना चाहते थे या एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. तो इन सबको चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्कुल रिमूव कर दिया. ऑल दो रेजिमेंटल इन रेवेन्यू कलेक्शन, हालांकि जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो भी रेजिमेंटल था, एरिया वाइज था. मौर्यज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड मैनी पब्लिक वर्क्स. मौर्यज ने बहुत सारे पब्लिक वर्क्स के लिए, जो आम पब्लिक के लिए जो काम थे उसको स्पॉन्सर किए. स्पॉन्सर करना मीन्स टू गिव मनी. they allotted money for the public welfares. जैसे वाटरवेज को इन्हेंस करना, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, बढ़ाना, उसको प्रमोट करना. वाइल इंटरनल ट्रेड इन इंडिया एक्सपेंडेड, और इसके साथ साथ इंडिया का इंटरनल ट्रेड भी, जो इंडिया के विद इन कंट्री जो ट्रेड था उसको भी एक्सपैंड किया. एंड ड्यू टू न्यू फाउंड पॉलिटिकल यूनिटी, और उसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, न्यू फाउंड पॉलिटिकल यूनिटी एंड इंटरनल पीस, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक अपने लिए एक सिक्योरिटी फील होने लगी, जिससे एक यूनिटी एंड इंटरनल पीस की सिचुएशन क्रिएट हुई. मीन्स लोगों में एक पीस एंड यूनिटी की सिचुएशन क्रिएट हुई. और जब यूनिटी एंड पीस होता है किसी जगह पे तो डेफिनेटली इट डेवलप्स, है ना. तो अंडर द ग्रीक फ्रेंडशिप, इंडो ग्रीक फ्रेंडशिप, इसके बाद मॉरियंस ने एक और चीज़ करी. इन्होंने इंडो ग्रीक फ्रेंडशिप ट्रीटी अग्रीमेंट किया, जिसमें कि इंडिया और ग्रीक दे वर द गुड फ्रेंड्स एंड दे हैड अ ट्रीटी, समझौता. ट्रीटी मीन्स समझौता किया. एंड ड्यूरिंग अशोकाज रीन, और अशोका के रीन मीन्स पीरियड में, एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ट्रेड एक्सपेंडेड, और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंड हुआ. द खैबर पास, ये खैबर पास ये पाकिस्तान में है. द खैबर पास ऑन द मॉडर्न बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, अंडरलाइन करेंगे, एंड अफ़गानिस्तान. खैबर पास इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. बिकेम अ स्ट्रैटेजिकली, ये एक पॉलिटिकली आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं थॉटफुली. इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एरिया. पोर्ट ऑफ ट्रेड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ट्रेड था. एंड इंटरकोर्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से इंडिया को कनेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट रूट बना. ग्रीक स्टेट्स एंड हेलेनिक किंगडम्स इन वेस्ट एशिया बिकेम इम्पॉर्टेंट. इसके साथ साथ ग्रीक स्टेट्स एंड हेलेनिक नेम है ये किंगडम्स इन वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया के किंगडम्स से दे बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया. अंडरलाइन करते जाओ, ये भी इंडिया के इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स बने. मीन्स हम कह सकते हैं कि इंडिया had very friendly relations with other countries of the world since the time of Ashoka, or since the time of Maurya emperors. And trade also extended. इसके बाद ट्रेड आगे ही बढ़ता रहा थ्रू द मलाय पेनिनसुला इनटू साउथ ईस्ट एशिया. अंडरलाइन करेंगे मलाय पेनिनसुला. इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड सिल्क गुड्स, और इंडिया से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, क्या क्या जाती थी. इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट सिल्क गुड्स एंड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड एक्सोटिक फूड्स. The empire was enriched further with an exchange of scientific knowledge. और इसके साथ साथ अब डे बाय डे इंडिया साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी में भी यूरोप और वेस्ट एशिया के साथ आगे बढ़ रहा था. मीन्स डे बाय डे इंडिया वाज आल्सो इम्प्रूविंग इन टेक्नोलॉजी एंड
this scientific knowledge. Ashoka also sponsored, अगर हम बात करें अशोका की, he sponsored the construction of thousands of roads. अशोका ने भी बहुत सारा मनी दिया for construction of roads, waterways, canals, hospital, rest houses and other public works. In many ways, the economic situation in the modern empire is comparable to the Roman empire. इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसमें मॉडर्न एम्पायर को हम रोमन एम्पायर से कंपेयर कर सकते, मीन्स दे वर इक्वली फ्लरिश्ड. चलिए अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे. मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, चलिए अब स्टार्ट करें. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस. अंडरलाइन करेंगे कि मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे. इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस विद द इम्पीरियल कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र. और इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र. फ्रॉम अशोकन एडिक्ट्स द नेम्स ऑफ द 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स आर. और इसके साथ साथ हम अशोकन एडिक्ट्स को अगर हम देखें पढ़ें तो उससे हमें पता चलेगा कि 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स कौन कौन सी थी. तो साली, दिस वॉज इन द ईस्ट. उज्जैन, इट वॉज इन द वेस्ट. सुवर्णागिरी इन द साउथ and Takshila in the north. Now Takshila is not in India, it is in the part of Pakistan, as you can see in the previous map. The king was the most important. और अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खास फीचर्स थे, अब हम ज़रा इसको देखें. The king was the most important person in the administration. राजा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का. ही वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही वॉज द कुमारा. उसको क्या माना जाता था, कुमार. और रॉयल प्रिंस हु गवर्न द प्रोविंस एज किंग्स रिप्रेजेंटेटिव, जो कि राजा के रिप्रेजेंटेटिव के तरह उस एरिया को गवर्न करता था. द कुमार वॉज असिस्टेड बाय महामात्यास. महामात्यास मिनिस्टर्स and council of ministers. This organizational structure was reflected at the imperial level with the emperor. ये हमको ये organizational structure दिखता है कि ये this was a type of imperial level with the emperor and his मंत्री परिषद. He used to have the मंत्री परिषद और council of ministers. जैसे आज हम देखते हैं, if we talk about modern age, modern India, we have the means slightly matched things. We have the prime minister, he is the king, and we have the ministers, council of ministers, which is their mantri parishad. So they work together for the welfare of the country. Same way at the time of modern emperors they used to work like this. अब हम ज़रा चंद्रगुप्त मौर्य के कैरेक्टर की कुछ खास बातें पढ़ेंगे. Then in next session we'll start with the Ashoka. अब ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर्स. अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो एक बहुत रिमार्केबल कैरेक्टर थे. अ सोल्जर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हाई ऑर्डर. ही वॉज अ सोल्जर विद एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हाई ऑर्डर. ही रूल्ड हिज पीपल इन अ जस्ट एंड काइंड मैनर. इसने सिर्फ इम्पोज नहीं करी चीज़ें अपने एम्पायर में जो भी लोग थे कॉमन पीपल पे. ही वॉज वेरी जस्ट एंड काइंड मैनर ऑफ पर्सन. ही गेव एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ही लिव्ड इन लग्जरी. वॉच चैरिट रेसेस, रथों की चैरिट रेसेस एंड बुल रेसेस. ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग दीज. ही जैसे आजकल आप क्रिकेट देखते हैं, हॉकी देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं. सो दीज आर योर hobbies. So their hobbies was to watch chariot races and bull races. He was the first in India to establish a mighty and a united empire. और चंद्रगुप्त मौर्य एक सबसे पहले रूलर थे इंडिया में जिन्होंने इस्टेब्लिश किया बहुत ताकतवर, माइटी मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड यूनाइटेड एम्पायर. ही यूनाइटेड ऑल द स्मॉल किंगडम्स इनटू हिज big kingdom and they also were very much happy to join this kingdom. He drove the allied invaders, the Greeks. इसने जितने भी allied invaders जो इनके पहले इनके साथ invaders थे ग्रीक्स को
इंडिया से भगाया. ही वॉज द बिल्डर ऑफ द नेशन. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द बिल्डर ऑफ द नेशन. एक राष्ट्र निर्माता था. ही वॉज ऑल्सो ग्रेट कॉन्करर, एक विजेता था. अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर, एक बहुत बड़े एम्पायर को बनाने वाला था. ही रिनाउंस्ड हिज एम्पायर, उसने अपने रिनाउंस किया अपने एम्पायर को. ही पास इट ऑन टू हिज सन बिंदुसार, और उसके बाद उन्होंने ये एम्पायर किसको पास ऑन किया? ही passed on this to his son Bindusar, and he said to have become a Jain ascetic. और उसके बाद एक जैन मीन्स आप कह सकते हैं एक जैन प्रीस्ट बन गए. ही लेफ्ट ऑल द लग्जरीज, he left out his palace, and he is said to have become a Jain ascetic and starved himself to death. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सर्टनली अ लवेबल एम्पर. अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ही वॉज अ lovable emperor, definitely a lovable emperor who had a great personality with many outstanding dimensions. जिसकी कैरेक्टर के बहुत सारे डायमेंशंस अगर हम डीप स्टडी करते हैं तो हम पाएंगे कि उसके कैरेक्टर के बहुत सारे आउटस्टैंडिंग डायमेंशंस हमको एरियाज देखने को मिलेंगे. फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ, एंड आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर टुडे. And this question time on page number 57 given in box. All 5 questions you will do in your practice notebook. ये आप अपनी practice notebook में all 5 questions you will do. So this is your homework for today. I hope you have enjoyed today's session. Thank you and have a nice day.